Assalamu alaikum. Good evening. My name is Dr. Raja, consultant psychiatrist at Jauddin Hospital, Karachi, KDLB. Today we discuss some important topic, depression and anxiety disorders. And when depression and anxiety disorders occur, how to start antidepressant. So there are all the antidepressant are the same. There are some questions in everybody mind. How do you decide which antidepressant use first? Do you choose differently if patients suffer from severe versus moderate versus mild depression? Does the level of anxiety influence your choice of antidepressant? Other even more important factor. There are some questions occur in everybody mind. There are हमें कैसे दवाई शुरू करनी चाहिए, कौन सी एंटीडिप्रेसेंट बेहतर है, कब तक खानी है, कोई उसकी वजह से हमें कोई इश्यूज तो नहीं होंगे, क्या ये एंटी डिप्रेसेंट एडिक्शन तो नहीं करवाती. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक के माइंड में ये चीजें आती हैं. तो फर्स्ट वी व्हेन वी स्टार्ट एंटी डिप्रेसेंट, फर्स्ट वी असेस एंड मैनेज द डिप्रेसिव डिसऑर्डर. आफ्टर असेसमेंट where there is a depression is clinical heterogeneous disorder. Depression क्या है? There are some important features mostly occur in emotional, cognitive, and physical symptoms in the form of picture of symptoms. Emotional symptoms kya hai? There are some anxiety, sadness, irritability, lack of enjoyment. There are some suicidal thoughts, hopelessness, worrying thoughts, inappropriate guilt. These are the emotional symptoms. What are the cognitive features? There are some attention and concentration, forgetfulness, difficulty in recalling, planning in organizations. There are the cognitive pictures of the depression mostly. There are some physical symptoms which are also we call melancholic or somatic symptoms, in which there is a patient with fatigue, eating problem, sleep problem, sexual dysfunction, headache, stomach problem, pain, and psychomotor agitations. These are the clinically picture of the depressive disorders on which patient present from any of these complaints. And this is fear versus anxiety. Fear actually it is a stress response from danger, which are present really in the form of danger. It is called fear. खौफ हमें होता है कोई भी चीज जेन्युइन हो, उसकी वजह से हमें खौफ हो सकता है. Anxiety without any reasons, stress response just from your thoughts. कोई आपके डेंजर सामने ना हो, आपके इंटरनल आपकी एंजाइटी डेवलप हो विदाउट एनी रियल थ्रेट, उसको हम एंजाइटी कहते हैं. एंजाइटी आपकी वो है. देयर आर सम डिफरेंट फीचर्स, साइकोलॉजिकल फीचर्स, सोमेटिक फीचर्स, कार्डियो ऑटोनोमिक symptoms. These are the some anxiety symptoms which we discuss later in slides. This is depression. Treatment goal क्या है हमारा? Depression जब हमारे यहाँ होता है तो what is the treatment goal? There are some treatment goal. तो patients full recovery होनी चाहिए. आपकी symptoms आपके जो हैं उसमें symptoms आपके जब present होते हैं, you start the treatment initially. Patients response आपका आना चाहिए initially in 2 to 3 weeks. Acute response 6 to 12 weeks आपके होने चाहिए. At least 3 months में आपके response होने चाहिए. If patients continue taking medications, response आपका आगे होगा. If patient discontinue treatment, उसको relapse हो सकता है. Relapse क्या है? Relapse occur when patients improvement occur after treatment 50%. Again, he discontinue medications, then patient symptoms reoccur. दोबारा उसको symptoms आए, उसको हम relapse कहते हैं. Relapse. और पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो जाए, दवाई लेने के बाद उसका एपिसोड खत्म हो जाए, नेक्स्ट एपिसोड हो, तो उसको हम रिकरेंस कहते हैं उसको. These are the anxiety symptoms like we have discussed. There are some psychologically picture in which patients fear, anticipation, irritability, sensitivity involves. जल्दी जल्दी थोड़ी चीजों बातों में उसको irritability, anxiety होगी, restlessness होगा, unable to sit at one place, and poor concentration, varying thoughts or worrying thoughts, बिला वजह की सोचें उसके जहन में चलेंगी, कैसे होगा, क्या होगा. These are the psychologically symptoms of the
anxiety. These are the CNS and genitourinary. CNS symptoms क्या होंगे? Sleep disturbance होगी. Mostly in anxiety patients, sleep disturbance जो होती है वो आपकी frequent wakening होती है. वो बार बार उसमें वो जागता है, नींद आती है, बार बार आंख खुलती है, तो उसको sleep disturbance के mostly related to anxiety. जो डिप्रेशन में स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, इट इज डिफिकल्ट इन फॉलिंग asleep. वो आपको नींद आने में आपको मुश्किलात होगी, या अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग, आपका वो नींद से जल्दी उठ जाएगा 2 to 3 आवर्स रूटीन में. तो इसमें इनएबिलिटी टू रिलैक्स, ब्लड विजन, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी. Genitourinary frequency, amenorrhea, lack of sexual drive, impotence also can be feature of anxiety symptoms. Serious palpitation, घबराहट होती है, दिल धड़क रहा है, तेजी से दिल धड़क रहा है, pressure on chest, heaviness on the chest, these are the also anxiety symptoms. And respiratory difficulty in breathing, suffocation, hyperventilations, heaviness on chest, GIT symptoms, loss of appetite, heartburns, diarrhea, कभी constipations, compulsive eating, बार बार कोई चीज उठाएगा खाएगा एंजाइटी में. And musculoskeletal tremors, muscle pain, tension, headache, decreased coordination, these all the pictures of anxiety symptoms. जरूर नहीं है कि ये सब चीजें आपको साथ में मिले, कुछ भी चीजें आपको डिफरेंट वेरी करती हैं पिक्चर पेशेंट टू पेशेंट. There are some symptoms which are overlap between generalized anxiety disorder and depressive disorders. Already I will discuss that anticipatory anxiety, nervous tension, muscular tension, restlessness, tension, pains, physiological arousal like hyperactivity. These are the symptoms of the anxiety. In depressive symptoms, there are apathy, retardation, withdrawal symptoms, loss of interest, loss of energy, decreased interest in work, decreased attention and concentration, forgetfulness, hopelessness. These are the symptoms of depressive. But some pictures are which are mostly occur in when combination of generalized and depression pictures both related. जब साथ में पिक्चर मिले तो we can diagnose anxiety depression both mixed anxiety depression disorder, in which there are the fatigue, dysphoria, irritability, sleep and appetite disturbance can occur in both depression and anxiety symptoms. This is the verbatim of the patient के तबीयत में घबराहट है, दिल एक सेकंड भी खुश नहीं रहता. These are the anxiety symptoms. तबीयत गैर मुतमईन रहती है और तरह तरह की फिक्रें मौजूद रहती हैं, दिल में अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आते हैं. This is anxiety symptoms. Rivotril medication, clonazepam 2 मिलीग्राम या वो लेते हैं तो उसके बाद रात को 2-2:30 बजे आंख खुल जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती, मामूली बातों का बहुत टेंशन हो जाता है, हर वक्त दिल उदास गमगीन अफसुदा रहता है, बहुत ही मामूली आवाज से आंख खुल जाती है, तबीयत में मायूसी और उदासी होती है, रोना आता है, तबीयत गुमसुम होती है. दिस इज द मिक्स्ड पिक्चर ऑफ द एंजाइटी एंड डिप्रेशन. इसमें 2-3 आपके हर वक्त दिल उदास रहता है, डिप्रेस सिम्टम्स हैं, बहुत सी मामूली आवाज से आंख खुल जाती है, इट्स एंजाइटी सिम्टम्स. ठीक है ना, ये दोनों वर्बटम ऑफ पेशेंट्स हैं इसके. Why the anxiety or depressive symptoms occur? There are some psychosocial factors related to patient. Early environmental, in the childhood there is some paternal deprivation or overprotectiveness is also related to some anxiety symptoms. Childhood adversity like emotional abuse, physical abuse, this may be cause of the anxiety and depressive symptoms. Some life events in which there are the patients, someone's death occur. पेरेंट्स की कहते हैं कि अगर 11 years से पहले अगर किसी फादर की डेथ हो जाए तो वो this lead to the cause of the depressive symptoms. Poverty, unemployment, financial and housing difficulties, low educational status, law and order situations, social injustice, large number of children, unequal distribution of roles. These can cause the anxiety and depressive symptoms. These all are the psychosocial factors. लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का मतलब है कि घर में फर्ज करें किसी को बहुत से हैं तो मैनेजमेंट में उसको इश्यूज आ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, तो दीज आर दी रिलेटेड टू एंजाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स.
दिस इज नाइस गाइडलाइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस गाइडलाइंस। हम कोई भी ट्रीटमेंट एंजाइटी या डिप्रेशन का शुरू करते हैं तो हमें कोई गाइडलाइंस की जरूरत होती है, तो हम कैसे उसको डिप्रेशन एंजाइटी को शुरू करें। जब आप असेस करते हैं तो डिप्रेशन जब आपका असेसमेंट में हो जाए कि ही इज नाउ पेशेंट डायग्नोस्ड विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो आप उसको फिर एंटी डिप्रेशन शुरू करते हैं। वो कब करेंगे एंटी डिप्रेशन शुरू? इन माइल्ड डिप्रेशन वी डोंट गिव एंटी डिप्रेशन, in which there are the non-pharmacological interventions are recommended, like cognitive pharmacotherapy, exercise, sleep hygienes in mild depressive disorders. In moderate to severe depressive disorders, we can start antidepressant with psychotherapy. There are the some critical first choice. हम किस पेशेंट में कौन सी दवाई शुरू करें और कैसे करें? There are some parameters like अगर किसी का वेट ओबेस है, किसी को एंजाइटी सिम्टम्स हैं, किसी को डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, या किसी को नींद का मसला है, तो दीज आर दी पैरामीटर्स व्हेन वी स्टार्ट द एंटी डिप्रेशन। ये सिम्टम्स हम पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा उसको कंप्लेंट्स किस चीज में, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, उसको कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, तो हम उसमें हम चॉइस करते हैं एंटी डिप्रेशन की कि हम कैसे वो करें उसमें। These are the some many factors in which patients taken into account when selecting an antidepressant. आप पेशेंट से फर्स्टली डिस्कस करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द एंटी डिप्रेशन, आप उससे स्टार्ट करते हैं कि आप उसकी अफेक्टिवनेस का, कि आपको वो अफेक्ट कब करेंगे, टाइम कितना ले सकती हैं, उसके विड्रॉल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसने पहले कभी कोई एंटी डिप्रेशन यूज की है या नहीं की, उसका क्या अफेक्ट है। आप उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस डिस्कस करें कि वो उसकी अफेक्ट वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं। हम डॉक्टर से उसको लिख तो देते हैं तो वो उसकी इतनी वो फाइनेंशियल्स कोई इश्यूज तो नहीं है, तो हम हो सकता है उसकी वजह से हम कोई ऐसी दवा लिखें जो उसको कम कॉस्ट में पड़ रही है। दीज आर दी पैरामीटर्स वो सिलेक्ट करते हैं जब पेशेंट्स को हम पहले हम स्टार्ट करते हैं उसको। देयर आर सम न्यूरोट्रांसमीटर्स आर लिंक्ड टू बिहेवियर ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं? These all neurotransmitter, acetylcholine, norepinephrine, dopamine, histamine, and serotonin, all the neurotransmitters are involved in the depressive disorder. Cognition, all neurotransmitter affect होते हैं in cognition. When patient says there is some either problem in forgetfulness, memory problem हो रही है, तो उसमें ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मूड में कौन से होते हैं? ये तीन, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। सेक्सुअल में तीन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन एंड हिस्टामिन आर दी रिलेटेड मोस्टली इन सेक्सुअल डिजायर। वेट में हमारा मोस्टली जो होता है वो डोपामिन एंड हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स और ये इन्वॉल्व होते हैं कि वेट में। दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड। This is classification of antidepressant. There are some classification of antidepressant like tricyclic antidepressant, selective serotonin reuptake inhibitor, SNRI, selective non-adrenaline reuptake inhibitor, NASA, NDRI, non-adrenaline dopamine reuptake inhibitor. These are the some classification of antidepressant. ये स्लाइड है कि हम किस में कौन सी एंटीडिप्रेसेंट यूज करें। इसमें जैसे एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है। इसमें जैसे ट्राइसाइक्लिक है, ये हम लो कास्ट है, जिसमें इफ पेशेंट है सम फाइनेंशियल इश्यूज, तो आप उसमें ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का चूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी आती है एमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, क्लोमिप्रामिन, डोटिपेन। दीज अफेक्ट्स ऑन द अल्फा 1 मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एंड हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स। इस बहुत अच्छी दवाइयां हैं और इसकी लो कॉस्ट अवेलेबिलिटी है, बट देयर इज सम डिसएडवांटेज। इसके जो आपके साइड इफेक्ट्स इसके वो हैं, सम रिलेटेड टू एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आपके इसके ये करवा सकती हैं। सेकंड में SSRI, वेल नोन, सब लोग यूज करते होंगे। इसमें भी हमें 2-3 चॉइसेस आ जाती हैं लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में हम किस में कौन सी यूज करें। इसमें citalopram है, citalopram, fluoxetine, paroxetine, fluoxamine, sertraline, venlafaxine. These all are effect on the 5-HT1A, 5-HT2, 5-HT3 serotonin receptors.
इजी डोजिंग है, फ्यूअर एंटी साइड इफेक्ट्स हैं, लो टॉक्सिसिटी है, but some may have side effects like GIT obstruction, headache, problem, and abrupt discontinuation. These are the well good. When we start the drugs, mostly we prescribe SSRI initially because there are fewer anticholinergic side effects or or low toxicity. If patient has a other problem like venlafaxine, हमें कोई जैसे जल्दी अफेक्ट के लिए चाहिए या बिल्कुल एनेडोनिक इफेक्ट है, बिल्कुल ही पेशेंट को हमें एक्टिवेट करना है तो वेनलाफेक्सिन, बट ये इट इज आल्सो डिसएडवांटेज लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हाइपरटेंशन करा सकती है। वेनलाफेक्सिन मोस्टली इफेक्ट ऑन नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलेटेड है आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाने के, तो उस वजह से उसके थोड़ा डिसएडवांटेज है, अदरवाइज इट इज वेरी गुड ड्रग। मेट्राजिपिन नासा, व्हेन पेशेंट हैज सम सेक्सुअल प्रॉब्लम, इवन स्लीप प्रॉब्लम, तो आप उसमें ये चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। मेट्राजिपिन एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट है, नॉन एड्रेनालिन 5-HT2, बट डिसएडवांटेज सेडेशन, weight gain, edema, hypertension. These are the disadvantage of metrazepine tablet. It's very good drug in the form of high potency drug. Another bupropion, it is usual form of fatigue, hyperinsomnia, treat impulse disorder, nicotine addictions, irritability, restlessness, जिसको उसमें आप bupropion आपकी ये बहुत अच्छी दवाई है, but it can cause seizure induction, वो आपकी फिट्स करा सकती हैं, hypersensitive reaction, withdrawal effects आपके वो करा सकती हैं, तो ये नॉन एड्रेनालिन और डोपामिन पे अफेक्ट करती हैं। तो हम चॉइस जो करते हैं इस बेसिस पे करते हैं कि किसका वजन क्या है, ऑलरेडी उन्होंने कोई यूज किए, स्लीप का इश्यूज है नहीं, कार्डिक इशू किसी को है तो हम कौन सी यूज करें। इफ पेशेंट इज एक सम कार्डिक इशू, वी अवॉइड मोस्टली ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड आल्सो। स्पेशल ग्रुप में हम कौन सी यूज चुके हैं, मोस्टली पेशेंट आर कंसर्न कि स्पेशल ग्रुप में मोस्टली प्रेगनेंसी होती है, तो मोस्टली हम इन्वॉल्व होते हैं कि कौन सी दवा सेफ है, कोई बच्चे को नुकसान तो नहीं होगी, और उसमें कौन सी हम दवाई चूज करें। इन प्रेगनेंसी मोस्टली हम यूज करते हैं इन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में आपकी एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, इमिप्रामिन, और एसएसआरआई में सर्टेलिन एंड फ्लुक्सिटिन। These are the two drugs we can use mostly in pregnancy. Mood stabilizer, antipsychotic हम यूज करते हैं, बट मूड स्टेबलाइजर लाइक सोडियम वेलप्रोइड, लिथियम एंड कार्बामेजिपिन हम अवॉइड करते हैं बिकॉज देयर इज सम सीरियस साइड इफेक्ट्स, टेराटोजेनिक साइड इफेक्ट्स हैं उसके। जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन में भी हम उसमें एंटी डिप्रेसेंट की चॉइसेस आ जाती हैं, सर्टेलिन, पेरोक्सिटिन, फ्लुक्सिटिन, दीज आर दी इंडिकेशंस, हम उसको यूज कर सकते हैं, बट आल्सो वी कैन यूज इस्टालोप्राम एंड एमिट्रिप्टिलिन वगैरह उसमें। हेपेटिक में इसिटालोप्राम एंड सिटालोप्राम इज सेफ, renal impairment में citalopram and sertraline is safe. Epilepsy, mostly we avoid TCA because it can cause seizure, fits करा सकते हैं, और epilepsy में हम escitalopram is safest drug, SSRI, fluoxetine, metrazepine, tetracycline, और वो जो हम avoid करते हैं उसमें escitalopram, fluoxetine, metrazepine are the these drugs are mostly safe in epilepsy. उसमें ischemic heart disease, फ्लुक्सिटिन और सर्टेलिन हम देते हैं उसमें, और मेट्राजेपिन भी हम यूज कर सकते हैं उसमें। चाइल्ड और एडोलेसेंट में 5-14 फ्लुक्सिटिन, सर्टेलिन, इमिप्रामिन हम ये चूज कर सकते हैं उसमें, कौन सी उसमें वो दवाई। जेरियाटिक में it is very hot topic, geriatric, because it can mostly patient as a comorbidity and old age, so we can very caution to start some antidepressant. There is sertraline, citalopram, escitalopram are the safest drug we can use in the geriatric old patients. These are the some pharmacological options and non-pharmacological options. Pharmacological options, these are the benzodiazepines, selective serotonin reuptake inhibitor, tricyclic, serotonin non-adrenaline selective serotonin reuptake, SNRI, NASA non-adrenaline selective serotonin agonist, beta blocker. These are the pharmacological options for the anxiety symptoms. And also non-pharmacological approaches हमें क्या है, we use of tyramine containing foods like banana, yogurt. Education the patient and family about preventions.
स्लीप हाइजीन के लिए हम बताते हैं स्लीप हाइजीन क्या है, उसके लिए हम बताते हैं कि एक रूटीन पे आपकी स्लीप टाइम होनी चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो स्लीप डिस्टर्ब करती हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, stress management, time management. These are the non-pharmacological approaches mostly we use in anxiety and depressive patients. Benzodiazepines. Mostly हम देखते हैं कि benzodiazepines जो ड्रग्स हैं उसमें हम बहुत कॉमन यूज करते हैं। कौन सी उसमें यूज आती है? अल्प्रासोलम, ब्रोमादिपाम एंड डायजिपाम्स। These are the drugs which mostly used by every doctors when patients is a sleep problem or anxiety symptoms. Alprazolam is short acting, bromazepam and diazepam are the long acting. These are the very effective drugs for relieving of anxiety symptoms in acute symptoms for early management, not in chronic. Acute suddenly patient feelings and palpitation और घबराहट, तो उसमें हम ये आपने टेबलेट दे दी वक्ती डायजिपाम और अल्प्राजोलम, तो वो वक्ती acute के लिए तो वो बहुत बेहतर है। Start with lowest recommended dose, titrate toward optimal dose within 7 to 10 days. Clear plan होना चाहिए आपका, from outset should be laid down the review the prescription with intention of tapering them within 6 to 8 weeks. Ideally not more than 4 week. इसके लिए ये है कि बेंजोडाइजिपिन आपको not more than 4 weeks आपको कंटिन्यूटी नहीं करनी चाहिए, because there are chances of the addiction, और we avoid the multiple benzodiazepine, 2-3 साथ में हम अवॉइड करते हैं। These are the selective serotonin reuptake inhibitors drugs. When we start the antidepressant, you must ask the patient the effectiveness. आपका effect कब उसको नजर आएगा? Therapeutic effect patient को आपको गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दवाई बहुत ऐसा अपना असर दिखाती है, 10 से 15 दिन लग सकते हैं। तो ये आपके वर्डिंग जरूर होने चाहिए, क्योंकि पेशेंट हफ्ता ट्रीटमेंट लेता है, वो कहता है कि हमें कोई फायदा नहीं है, इसीलिए डिसकंटिन्यू दी मेडिकेशंस। तो उसको अगर पहले से पता होगा कि ये दवाई हमें आहिस्ता आहिस्ता फायदा करेगी, तो उसमें ये हमें डॉक्टर कंप्लाइंस अच्छी रहती है। ये डॉक्टर का फर्ज है कि वो उसको बताए अबाउट द इफेक्टिवनेस। तो उसमें और कॉमन साइड इफेक्ट जो है एसएसआरआई के, जीआई डिस्टर्बेंस, सेक्सुअल डिसफंक्शंस। रिकमेंडेड जो डोजेज हैं वोटियोक्सिटिन के 5 to 20 मिलीग्राम, इस्टालोप्राम 5 to 20 मिलीग्राम, सर्टेलिन 50 मिलीग्राम, पेरोक्सिटिन 20 मिलीग्राम एंड फ्लुक्सिटिन 20 milligram per day. OCD may be need higher dose of recommended dose, like fluoxetine के हम 80 मिलीग्राम तक हम जा सकते हैं, पेरोक्सिटिन का हम 40 मिलीग्राम पे जाते हैं, इसिटालोप्राम 40 मिलीग्राम पे हम OCD पे हम जाते हैं, उसको हायर डोज नीड होती है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मोस्टली पेशेंट आर कंसर्न होते हैं कि हमें कब तक ये दवाई खानी है, तो हमें यू मस्ट काउंसिल द पेशेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट ड्यूरेशन। फर्स्ट एपिसोड अगर जिसको पहली दफा किसी को ये अलामत हुए, तो हमें उनको ये बताना है कि ये हमें 6 से 9 महीने तक दवा खानी है। 6 से 9 महीने वो कब तक स्टार्ट होंगे? जब से पेशेंट बेहतरी महसूस करने लगेगा। जब दवाई स्टार्ट होगी, पेशेंट अगर 1 महीने के बाद बेहतरी महसूस करे, तो हमें ड्यूरेशन वहां से काउंट करना है, 1 महीने के बाद से, फर्स्ट एपिसोड में। तो 6 to 9 months ट्रीटमेंट है, पहले एपिसोड का हमें ये कंटिन्यूटी करनी है। चाहे पेशेंट की तबीयत बेहतर हो तो हमें 6 to 9 माह तक ये दवाई जारी रखनी है, क्योंकि अगर अर्ली स्टॉप कर देते हैं पेशेंट, क्योंकि बेहतर तो हो जाते हैं, देन दे हैव ए मोर चांस टू डेवलप रिलैप्स, रिकरेंस ऑफ द इलनेस। तो वो फिर उसके ज्यादा, उसमें अगर सेकेंड एपिसोड आ जाता है, आपका ड्यूरेशन आपका बढ़ जाता है, 2 साल दवाई आपको उसको खानी पड़ती है। फिर अगर तीसरा या चौथा या रिकरेंट एपिसोड होते हैं तो मे बी मोर देन 2 years, वो फिर डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशंस, आइदर वी कैन कंटिन्यू फॉर मोर देन 5 years और 5 years तक कुछ बुक्स रिकमेंड करते हैं वो दवाई। These are the current antidepressant associated range of side effects. Some SSRI के जो side effect हैं वो mostly there are some sexual dysfunctions, very alarming side effects. किसी को अगर हो जाता है तो वो उसमें भी मुख्तलिफ दवाई हैं जो वो साइड इफेक्ट उसको सेक्सुअल का नहीं है, तो उसमें हम दूसरी दवाई देते हैं। और उसके आपके इंसोम्निया, जीआईटी सिम्टम्स नॉर्मल, एसएसआरआई, एसएनआरआई के मोस्टली जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन,
साइड इफेक्ट है। और बाकी GIT सिम्टम्स हैं, वो कार्डिक सिम्टम्स हैं, पल्स रेट बढ़ाते हैं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो। TCA ऑलरेडी आई डिस्कस दैट इज देयर सम कार्डिक साइड इफेक्ट्स, QT इंटरवल इनके ये बढ़ाते हैं, तो वो आप TCA मोस्टली इन ओल्ड एज और उसमें ये अवॉइड करें। सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेडेशन, वेट गेन इज आल्सो related to tricyclic antidepressant. Monoamine oxidase inhibitor, these are the phenelzine, ट्रेंसिलप्रोमाइन, आइसोकार्बोक्सिल, सेलिजिन, ये आजकल कोई यूज नहीं करता बिकॉज देयर इज सम सीरियस साइड इफेक्ट, हाइपरटेंसिव क्राइसिस और सेरोटोनिन सिंड्रोम इसके जो हैं उसी वजह से दीज आर दी कम यूज होती हैं। अदर्स नेफाजोडोन, ट्रेजाडोडोन, मेट्राजिपिन, दीज आर दी good drugs, and these is some side effect, insomnia and weight gain uske. And another is vortioxetine, evilazodine. Vortioxetine is very good drug. It is a multimodal functions usme. What is multimodal? This is actually multimodal antidepressant are drugs that act via at least two modes of actions. उसके दो तरीके से उसके अफेक्ट है। एक अफेक्ट है आपका रीअपटेक इनहिबिटर ब्लॉकर, आपकी एक साइनेप्सिस के बाद आपकी बिटवीन साइनेप्सिस आपके आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो रीअपटेक जो वापस जाते हैं उसको रोकते हैं। दूसरा ये डायरेक्ट अफेक्ट करती है रिसेप्टर्स पे, तो इसको हम मल्टीमोडल उसको वो कहते हैं, इसको दो फंक्शंस इसके यहाँ होते हैं। दिस इज वन मोड ऑफ एक्शन इज रीअपटेक इनहिबिशन, सेकंड जो है वो भी रीअपटेक इनहिबिशन है, थर्ड आपकी रिसेप्टर्स एक्टिविटी वो आपकी, जैसे वो मैंने बताया कि ये ड्यूअल मॉडल ऑफ एक्शन से ये आपकी मल्टी मोडलिटी की आपका फंक्शन है, उसके रिसेप्टर्स एक्टिविटी रीअपटेक बोथ आर, these are the multimodal model. This is important slide. This is benzodiazepines. Actually we mostly use all of the doctors, but in benzodiazepine actually it is not an antidepressant. It is benzodiazepine we mostly use for the sleep disturbance and for controlling of anxiety symptoms. There is a risk of benzodiazepines. What are the risks? हम जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो रिस्क उसमें आइडियली मेन जो है वो है एडिक्शन का और विड्रॉल सिम्टम्स का। These are the some psychological and situational risk factors for benzodiazepine addictions are high neuroticism, introversion and lack of ability to release tension through interpersonal context, dominance of emotional coping styles, high accumulation of critical life events during both childhood and adulthood. एड्स, अब जब पेशेंट बेंजोडाइजेपिन में एडिक्ट हो जाए और उस पे हम क्या करते हैं, जब ये चीजें वी ट्राई टू डिक्रीज द बेंजोडाइजेपिन स्लोली हम उसको टेपर ऑफ करते हैं, वी एड करते हैं इन द ड्रग फॉर पेशेंट्स के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्लीप के लिए या मूड के लिए, जो भी उसके वो होते हैं। उसमें ऑप्शंस आपके आ जाते हैं, आप एंटी डिप्रेसेंट उसमें वो यूज करें जिसमें सेडेटिव इफेक्ट्स हैं, मेलाटोनिन इंड्यूसर आप यूज करें लाइक मेट्रोजिपिन, एगोमेलाटिन, दीज आर दी ऑप्शंस। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आप यूज कर सकते हैं उसमें, क्योंकि विड्रॉल इफेक्ट्स के लिए थोड़ी एंजाइटी होती है तो उसको कंट्रोल वो करते हैं, तो उसमें तो ये कंक्लूजन में एक वो आर्टिकल है उसमें यही देखा गया है कि दोज पेशेंट्स हु आर यूजिंग हेरोइन, अल्कोहल एंड सेडेटिव एडिक्शंस, तो उसमें इन्होंने ये उसमें यूज की थी एगोमेलाटिन, तो उस वजह से उसका इम्प्रूवमेंट देखी गई एंजाइटी उसमें सिम्टम्स में, तो उसमें स्लीप की भी बेहतरी आती गई, स्लीप इम्प्रूव होती गई, and also improve the quality of life in all patients with treated with एगोमेलाटिन।